Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, and today is 23rd of December. Okay, so I have got some very good news from the Hindu again today in the current affairs analysis. Okay, so the first news which I am going to tell you about is India and New Zealand recently completed talks on free trade agreement. Okay, free trade agreement. I will tell you what I have already told you in one video, but I will again explain it. What is free trade agreement and how it will be helping boost India and New Zealand trade talks. Okay, then drive against polluting units. As yesterday I told you the strategy of China, Beijing, about the polluting units, how they can be controlled and how pollution can be tackled as a bigger regional problem. Okay, then death knell for the rural jobs guarantee. It is again regarding Narega and some great article, some great critical points here again highlighted. Okay, step up. This is for corporates, that they must step up for environmental conservation also. Okay, for corporates under corporate social responsibility. Okay, India's core sector grows at 1.8% in November. In October, I told you that in October the growth was flat already in the past video. In today, I will tell you in November it has grown 1.8%, and I will also tell you which sector has led the growth. Okay, and what is this core sector? What are 8 core industries? Okay, and who prepares this index for industrial production. Okay, so I will discuss all of that. Okay, then right to disconnect. Okay, this private members bill was brought in parliament that employees should have right to disconnect the calls once the office timing is over. Okay, so this I will discuss here. Okay, then then I will also discuss Viksit Bharat guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin. It is not actually a demolition. It is basically it is not demolition. It is rather a reform which was overdue. This is a response to yesterday's criticism which was in the editorial of The Hindu. Okay, new series of data on consumer price inflation, CPI, consumer price index based inflation and other GNP, GDP, etc. New series data will be coming next year. What is the new series data? How it will be helpful? That all will be discussed. Get the point? Okay, so coming to the first article. The first article is basically about India-New Zealand free trade agreement. The talks are completed. Now the agreement is to be signed, which is believed that it may be signed in the coming few months. Okay. Now what is a free trade agreement? First of all, you must understand what is a free trade agreement. Please understand, it is an agreement between two countries to facilitate cross-border trade without barriers. Okay, to facilitate cross-border trade विदाउट बैरियर्स. ठीक है, विदाउट बैरियर्स क्या करना है? ट्रेड को फैसिलिटेट करना, मींस जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उनको रिमूव करना है. ठीक है, अब इंडिया और न्यूजीलैंड जो है हमारे आइलैंड कंट्री है. ठीक है, उसके साथ हमारे इस वक्त जो रिलेशंस है वो कॉर्डियल रिलेशंस है. अब यूएसए के जो 50% टैरिफ्स है उन्होंने हमें अलर्ट इसलिए कर दिया कि हमको अपनी एक सस्टेनेबल ट्रेड पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी. वाई? क्योंकि हम ओवर रिलाई नहीं कर सकते एक कंट्री के ऊपर. एक कंट्री के ऊपर रिलाई करने की वजह से हमने देखा कि जब से यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहे हैं. ठीक है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है लेकिन उसके बावजूद करेंसी का कंसिस्टेंटली हमारा डेप्रिशिएट हो रहा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं. तो ये एक स्ट्रेटेजी है किस चीज के लिए? कि हमको दूसरी कंट्रीज पे भी अपना रिलायंस रखना है, हमको अपने ट्रेड पार्टनर्स जो है वो बढ़ाने हैं ताकि हम सस्टेन कर सके कभी भी ऐसे इकोनॉमिक शॉक्स को. ठीक है, अब हमने क्या कमिटमेंट कर रहे हैं इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि हम $20 बिलियन की ट्रेड जो है एफडीआई जो है वो कराएंगे न्यूजीलैंड से इंडिया के अंदर. ठीक है, मींस हम सबसे पहले इससे क्या चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्रमोशन हो, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो. $20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम जो बायलेटरल ट्रेड है जो अभी अप्रोक्सीमेटली कितना है $2.5 बिलियन के आसपास है, इसको हम डबल करना चाहेंगे. ठीक है, मैं इस आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है. जब हम ट्रेड बैरियर्स रिमूव करते हैं ट्रेड के लिए दूसरी कंट्री के साथ. ठीक है, तो हम करना क्या चाहते हैं? $20 बिलियन फिक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स. नंबर 1. नंबर 2, डबल द बायलेटरल ट्रेड. बायलेटरल मींस हम दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है जो अराउंड $2.5 बिलियन से हम इसको लेकर जाएंगे $5 बिलियन तक. ठीक है, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स.
नेक्स्ट 5 years। अब हमको करना क्या है, हमको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन करना है। क्या करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना इज गुड, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी और हमारे प्रोडक्ट्स को एक इंटरनेशनल एक और एक्स्ट्रा मार्केट मिल जाएगी। लेकिन जहां तक बात है इंपोर्ट को फैसिलिटेट करना, तो इसमें एक थ्रेट ये है कि क्या पता चीप इंपोर्टेड कमोडिटीज हमारी कंट्री के अंदर आ जाएं और फार्मर्स या जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या छोटी जो सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, तो वो कंपीट ना कर पाए इंपोर्टेड चीप गुड्स के साथ। इसलिए इस आर्टिकल में ये कहा कि इन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम्पल protection for domestic producers, ample protection for domestic producers, especially farmers and allied workers। फार्मर्स और एलाइड वर्कर्स के लिए हमने क्या किया है, एम्पल प्रोटेक्शन रखा है अपने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं उसमें। ठीक है, फार्मर्स और एलाइड वर्कर्स के लिए हमने एम्पल प्रोटेक्शन रखा है। इसमें क्या रखा है, एम्पल प्रोटेक्शन रखा है। ठीक है, अब वो एम्पल प्रोटेक्शन क्या रखा है हमने इसमें, जैसे मैं आपको मेनली बताता हूं कि हमारे अनियंस, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता। ठीक है, अनियंस, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, ये सारी चीजें अगर हम बाहर से इंपोर्ट करने लग गए तो चीप इंपोर्टेड सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे हमारी कंट्री के लोगों को, और उसकी वजह से कहीं ये हमारे लोकल वाले जो हैं, रबर भी है इसमें, कहीं हमारे लोकल फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस में ना आ जाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा है कि हम क्या करेंगे कि इनका भी जो है प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए हम वर्क वीजाज या जॉब वीजाज जो है वो इजीली फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, स्किल्ड ऑक्यूपेशंस के लिए हमने क्या रख दिया, 5000 वीजाज एनुअली, कि यहाँ के इंडिया के लोगों को कम से कम अप्रोक्सीमेटली 5000 वीजाज मिल सके न्यूजीलैंड में काम करने के लिए पर एनम। ठीक है, दिस इज फैसिलिटेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ वर्क फोर्स और लेबर फोर्स। ठीक है, और उसके बाद राइस, व्हीट, डेयरी प्रोड्यूसर्स, सोया प्रोड्यूसर्स, इनका भी इंटरेस्ट जो है हमने इसमें सेफ रखा है, ताकि वो लोग क्या रहें, इस थ्रेट में ना रहें कि अगर इंपोर्टेड कमोडिटीज ज्यादा आ गई कंट्री में तो हम जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं दे विल बी रेंडर्ड इनटू द चैलेंज ऑफ प्राइस ड्रॉप ऑफ द कमोडिटीज। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये हमारा एक एफर्ट है कि हम ओशियाना रीजन में हमारे यही आते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। ठीक है, ओशियाना रीजन में हम क्या कर सके, अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर सके। ये उस स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी हमने कई सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए हैं, तो इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन इन द ओशियाना रीजन। समझ में आ गया आपको? तो ये आर्टिकल है, आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें। ठीक है, हाँ, उसके बाद इंडिया में हमने स्किल्ड लेबरर्स की जो है माइग्रेशन के लिए भी, ये मैंने आपको वीजाज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया। ठीक है, हाँ, जो हमारे वाइटल सेक्टर्स हैं जैसे डेयरी सेक्टर हो गया, बाकी चीजें, इनमें कोई कंसेशन नहीं दिया हमने ट्रेड के लिए, तो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं कर सकते हमारी कंट्री में। इसलिए हमने कहा कि हमने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए उन लोगों के जो वल्नरेबल सेक्शन है। ठीक हो गया? सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है स्टेप अप। स्टेप अप क्या है? स्टेप अप, दिस इज एन आर्टिकल रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये कॉन्सेप्ट इसमें समझना पड़ेगा आपको, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को थ्रेट हो रही है कॉर्पोरेट एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी समझना है आपको इसमें कि ये कौन सी स्पीशीज है, ये इकोलॉजी और एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पहले समझते हैं, फिर मैं आर्टिकल के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस उनकी सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पैसा सोशल गोल्स की तरफ, इथिकल गोल्स की तरफ, एनवायरमेंटल गोल्स की तरफ स्पेंड करना है। ठीक है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना स्पेंड करना है? कॉर्पोरेट्स जिन एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं इन तीनों में से, तो वो सीएसआर के लिए क्या है, और उनको उनके ऊपर सीएसआर बाइंडिंग है। उनके कंडीशंस क्या है? पहला, टर्नओवर देखते हैं कितना है,
टर्नओवर कितना है, नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, या प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अगर टर्नओवर जो है वो मोर देन, अगर टर्नओवर, इफ द टर्नओवर इज मोर देन 10 बिलियन और मोर देन 1000 करोड़ रुपीस, ओके, 10 बिलियन रुपीस, और नेटवर्थ जो है वो कितनी है, मोर देन 5 बिलियन रुपीस, और अगर प्रॉफिट जो है वो मोर देन 50 बिलियन रुपीस है, प्रॉफिट जो है वो मोर देन 50 बिलियन रुपीस है, तो ये वाली कंपनीज, ये वाले कॉर्पोरेट जो हैं, दे फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, प्रॉफिट नॉट बिलियन, इट इज मिलियन, मोर देन अराउंड 50 मिलियन, मिलियन सॉरी, 50 मिलियन रुपीस अगर उनका क्या है, प्रॉफिट है, या 5 बिलियन रुपीस अगर उनका नेटवर्थ है, या 10 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन रुपीस अगर उनका टर्नओवर है, तो वो एलिजिबल हैं। वो एलिजिबल नहीं है, उनके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉ इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 2014 में रूल्स भी पब्लिश किए, दे आर कॉल्ड एज CSR रूल्स 2014 में। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के अंडर में उनको करना क्या है। ठीक है, हाँ, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करता है। इसमें कहा क्या गया कॉर्पोरेट्स को कि आपको अपने प्रॉफिट का, पिछले 3 इयर्स के प्रॉफिट का 2% आपको स्पेंड करना है कॉर्पोरेट सोशल वर्क के लिए, इथिकल वर्क के लिए, मॉरल वर्क के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, सो कॉर्पोरेट्स fulfilling any of the above criteria, any of the above criteria to spend 2% of their past 3 years profit, 3 years profit on social, ethical, moral, environmental issues. Get the point? अब यहां पे वर्ड environmental जब मैंने रख दिया तो इसका मतलब अगर कोई स्पीशीज थ्रेटन हो रही हो कॉर्पोरेट एक्टिविटी की वजह से, उसकी कंजर्वेशन करना भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। इसी एनलाइटनमेंट में ये आर्टिकल है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए कई सारे जो इलेक्ट्रिसिटी पावर डेवलपमेंट में जो कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, उनका हैबिटेट इससे थ्रेटन हो रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट उसका साइज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो साइज है वो काफी ऊंचा होता है। ठीक है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो कॉर्पोरेट्स है वो एम्पल स्टेप्स नहीं ले रहे थे, तो एक पेटिशन फाइल हुआ था इस केस में, और उस पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जजमेंट क्या दे दिया 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और चीज इंक्लूडेड है, वो क्या है, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR includes CER also, corporate environmental responsibility. This is the judgment, okay, and the judgment is about for the conservation of great Indian bustards who are dying because of power infrastructure. ठीक है, there have been so many deaths reported due to power infrastructure, ये इस लाइट में एडिटोरियल है कि आप अगर एनवायरनमेंट को थ्रेटन कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि जितनी भी कंजर्वेशन की एफर्ट्स है
वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप एनवायरनमेंट को डैमेज भी कर रहे हो तो कंजर्वेशन भी आप ही को करना हो गया, ठीक है। तो इस जजमेंट से, ये वाली जो जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, इस जजमेंट से लीगल पोजीशन जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लीगल पोजीशन जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। और कंपनी को क्या करना है, प्रिवेंशन भी करना है, और अगर कभी लॉस किया है स्पीशीज का तो उसकी रिकवरी भी उनसे की जा सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें, अब इसमें कुछ चीजें तो हैं, लेकिन इसमें ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सी कंपनीज को पे करना है और कितना पे करना है, ठीक है, और कहां, कब और किस ऑडिट ट्रेल के अंडर में ये चीजें चेक की जाएंगी, ठीक है। खैर ये चीजें और भी बाद में चेक की जा सकती है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में मेनली ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या है, ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, पहली चीज ये है। दूसरी चीज इसके बारे में ये है कि ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये एक क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या कहता है कि अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसका देखोगे आप, इसकी हाइट जो है अराउंड 3.3 फीट टॉल होती है और 18 केजीज तक इसका वेट होता है, 18 केजीज तक इसका वेट होता है, ठीक है। अब ये नेटिव कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, लेकिन वहां से जो है कई सारे एरियाज में, जैसे अपने राजस्थान वाले एरिया में, या महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में, गुजरात में, इन स्टेट्स में इसकी पॉपुलेशन जो है कहां कहां पे, मैंने बताया आपको, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, गुजरात, इन स्टेट्स में इसकी पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी पाई जाती है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब इसके अलावा इसका और भी स्टेटस अगर देखेंगे तो हमारे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, अगर उसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि उसमें कई सारे शेड्यूल्स हैं, उसमें ये शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 विच रिक्वायर्स सीरियस प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, सीरियस प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट्स। और मैंने आपको एक चीज और बताई है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, साइट्स, साइट्स में भी इसको रखा गया है अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 में कौन सी स्पीशीज को रखा जाता है, जिसकी आप इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। तो ये सारी जो आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड टू एन कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो सम लाइट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है राइट टू डिस्कनेक्ट ड्राइंग द लाइन आफ्टर द वर्क। आपको वर्क के बाद, काम करने के बाद एम्प्लॉयज को ये राइट होना चाहिए, एम्प्लॉयज को क्या होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए कि वो कॉल्स डिस्कनेक्ट कर सके अपने बॉस की, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये मेजर स्टडीज की फाइंडिंग है कि बॉसेस हैव स्टार्टेड एंटरिंग द प्राइवेट स्पेस ऑफ द पीपल ऑल्सो। वो क्यों, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि वर्क का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर इस समय अभी जो लेबर कोड्स है उसमें भी वर्क को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन ये कौन से कोड के अंडर में डिस्कस होगा, इट विल बी डिस्कस्ड अंडर द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्क, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क कंडीशंस 2020, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ 2020, इस कोड के अंदर जो है ये डिस्कस होगा, ठीक है। अब ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि वो बिल्स जो मिनिस्टर्स ना इंट्रोड्यूस करके नॉर्मल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कर सके, इसके पास होने की पॉसिबिलिटी भी बड़ी रेयर मानी जाती है कि इट इज वेरी रेयर, सॉरी, इट इज वेरी रेयर to get such bills passed in the parliament, but this bill has opened a gate, floodgate for discussion on ये डिस्कशन किसके बारे में है मैं आपको बता देता हूं। इट हैज ओपनड अ डिस्कशन ऑन वर्क लाइफ बैलेंस,
means recently majority of the people are suffering from tension, stress, anxiety, work related anxiety. Why? Because there is no work life balance. Some people are working from morning 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. to evening, maybe 8 a.m., 12, 9 a.m., 10 a.m., even 12 a.m. Later on also, we have seen that employees receive call from the bosses. Okay, now in this backdrop, we need work has been extended due to digital technologies. So, work environment in digital economy needs to be relooked. Work environment in digital economy, because once you leave the office, you should not receive calls or WhatsApp messages. This is what the bill talks about. The bill says that there must be a balance between work and life. But now then officers or bosses say, we are not calling for work, we are calling for certain clarifications. And there is ambiguity in definition of work. वर्क का डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी है किसमें? वर्क के डेफिनेशन में. इसके लिए इस आर्टिकल में कई सारी कंट्रीज का एग्जांपल दे रखा है. जैसे मैं आपको बता दूंगा, यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दे रखा है कि वहां पे वर्क का डेफिनेशन क्या है, और फ्रांस का एग्जाम्पल दे रखा है, और जर्मनी का एग्जाम्पल दे रखा है. ये कुछ केस स्टडीज बनती है फिर आपके पेपर के लिए. इन सभी में एक चीज कॉमन है कि जब तक आप बॉस की कमांड में हो तब तक आप काम पे हो, चाहे कुछ कर रहे हो चाहे कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयर्स कंट्रोल इज ओवर यू, यू आर एट वर्क. ठीक है, तो क्राइटेरिया वर्क का क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रोल. अब अगर एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है ऑफिस आवर्स के बाद भी, तो आप फिर उसके कंट्रोल में उस वक्त भी हो, और अगर उसके कंट्रोल में हो तो वर्क तो अभी भी है आपका. ठीक है, इंडिया में लेकिन ऐसा कोई भी डेफिनेशन जो है वो नहीं है. ठीक है, हालांकि इंडिया में जो लेबर कोड्स आए उन्होंने लिमिटेशन लगा दिया वर्क के ऊपर. कितना लिमिटेशन है कि आप वीक में पर डे में 8 आवर्स इज द लिमिटेशन, वीक में 48 आवर्स इज द लिमिटेशन. इसके बाद का जो वर्क होगा वो ओवर टाइम होगा, और ओवर टाइम वर्क का जो है वो आपका नॉर्मल टाइम से डबल आपकी वेजेस होंगी. ये सारा डिफाइन तो किया गया, लेकिन वर्क का ही डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं किया गया. तो जब वर्क का डेफिनेशन ही प्रॉपरली नहीं है तो इस बिल के ऊपर डिस्कशन भी बड़ा फ्यूटाइल लगता है, इस बिल का पास होना भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है. लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इसने एक डिस्कशन के लिए रास्ता तो खोल दिया, एक वे आउट तो खुल गया कि हाँ डिस्कशन होगा, देखा जाएगा कि ये डिस्कशन कहां तक आगे बढ़ता है. ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपने इसको देखना है वर्क also in relation to Article 21 of the Constitution, क्योंकि Article 21 of the Constitution provides right to freedom of life and liberty, और उसी में we have right to disengage from the work, right to disengage from the work, although we have seen reasonable restriction on the fundamental rights for civil servants, for working people, for military people. Okay, so therefore what is actually the definition of work? पहले तो ये था कि work plus personal time, लेकिन because of the digital innovations the definition between work and the personal life has blurred, digital complexities है. ठीक है, लेकिन अब ये बिल जो है इसमें प्रॉपरली ये राइट किस राइट की बात कर रहा है वो भी क्लियर नहीं है. राइट टू डिस्कनेक्ट, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में जो है ये बात कर रहा है. ठीक है, लेकिन ओपनली इसने क्या किया है? एक डिबेट, एक अच्छे टॉपिक पे जिसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस. वो क्या कह रहे हैं? वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें जो इस आर्टिकल में डिस्कस्ड है, मैंने बेसिक्स आपको बता दिया. अब आप इसको एक बार रीड करेंगे, यू विल एंजॉय. गेट द पॉइंट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. वीबी रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन. It is not demolition, but it is a reform which was long overdue. It is a reform which is long overdue. ठीक है, इसने कहा आप कह रहे हो कि आप लीगल राइट टू वर्क चला गया, इसमें तो आपके पास राइट टू वर्क है, आपको तो 125 दिन दिए जा रहे हैं काम करने के लिए. लीगल राइट टू वर्क ये जो है अभी भी मौजूद है. ये एक इसका क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स है कि अभी भी ये मौजूद है. दूसरा,
आप एमजी मनरेगा को रोमांटिसाइज कर रहे हो कि आप इसके कैसे पास हुआ, कंसल्टेशन हुआ, इतना हुआ, ये हुआ, जिसमें कोई रियलिटी नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के हेड अमित मालवीय साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो और ये भी कह रहे हैं कि बजटिंग फ्रेमवर्क जो है वो ओपन एंडेड रखा है, तो उसकी वजह से करप्शन भी तो था इसमें, तो करप्शन के कंट्रोल करने के लिए भी ये एक स्टेप माना जा रहा है, ठीक है। और ये भी माना जा रहा है कि कई सारे लोग जो 100 दिन काम ढूंढ रहे थे, वो 125 दिन उनको काम मिलेगा, ठीक है। और मनरेगा जो है वो बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए जो है लाइवलीहुड जो है, आप बोलते हो कि ये लाइवलीहुड को डिफाइन कर रहा था, लेकिन आज की डेट में हालांकि मनरेगा के काफी सारे ओवर ड्यूज हैं, इसके ओवर ड्यू बिल्स लोगों के इसके अभी भी हैं, टाइमली पेमेंट्स जो है वो अभी तक भी नहीं हो पाई हैं, ठीक है। खैर उसका मतलब ये ज्यादा वैलिड मुझे लगा नहीं पॉइंट वैलिड ये है कि लीगल राइट टू वर्क अभी भी मौजूद है, किस फॉर्म में, हाँ, हालांकि सिर्फ वो 60 दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। उस दिन फिर आप बेकार नहीं बैठोगे, कोई और दूसरा काम ढूंढोगे, तो आइडलनेस जो है इससे कम हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल है जिसमें और सारे वैलिड क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आए हैं, ठीक है। वो आर्टिकल ये वाला है, कहाँ है, सॉरी, नरेगा के ऊपर एक और आर्टिकल था, मैंने कहाँ रख दिया वो, वेट अ व्हाइल, लेट मी सी, या देयर वाज वन मोर आर्टिकल ऑन मनरेगा टुडे। खैर वो आर्टिकल मेरे अभी इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे, मैं आपको वैसे ही बता दूं कि वो आर्टिकल जो था वो ये कह रहा था कि हमारे जो मनरेगा है, मनरेगा को जो आपने डिसमेंटल किया, इसमें कई सारे राइट्स, कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपने इग्नोर कर दी, ठीक है। वो कौन से राइट्स और कौन सी चैलेंजेस इग्नोर की, आई विल जस्ट टेल यू वन बाय वन, हाँ, ठीक है। कल मैंने आपको बताया कि 100 डेज जो हैं वो सबको मिले थे, इसमें किसमें, मनरेगा में। अब आपने 125 डेज कर दिए, लेकिन उसमें ये एक पॉइंट आउट ये किया है कि कितने लोग इसमें 100 डेज ऑलरेडी काम कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 9% लोग 100 डेज काम कर रहे थे, ओनली 9% पीपल वर टेकिंग अप 100 डेज। और उसमें से भी 9% लोग जो 100 डेज का काम कर रहे थे, मेजॉरिटी लोग जो थे वो कौन थे, वुमेन थे। मेजॉरिटी लोग कौन से थे, वुमेन थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आज का आर्टिकल आया है उसमें एक केस है, मैं आपको वो केस यहां पे लिख रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी है। द केस इज अबाउट, इट इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये याद रखना, हाँ, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस 1985। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन टू गेट फेयर लाइवलीहुड एंड राइट टू वर्क, ठीक है। अगर आप राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ से अलग कर दोगे तो इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रह जाता। दिस इज व्हाट इन ओल्गा टेलिस सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो आपने जो है हालांकि अपोजिशन का कहना है कि राइट टू वर्क खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन इसमें फिर भी अभी जो पॉजिटिव साइड पे बात हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ पूरी तरह से, राइट टू वर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, हाँ, रिस्ट्रिक्ट हो गया है सिर्फ उस पीरियड में जब हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबरर्स की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नरेगा जो है इसके प्रोविजन जो है कि राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस था नरेगा में, वो आपने खत्म कर दिया। अगर 15 दिन में नरेगा के अंदर आपको काम नहीं दिया गया तो आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एंटाइटल्ड हो, ठीक है। जेंडर पैरिटी इन वेजेस के टर्म्स में जेंडर पैरिटी थी, मिनिमम वेजेस अमॉन्ग अदर्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एसेट्स थे, ये इंजन थे आपके 73rd अमेंडमेंट के, पंचायती राज के, ग्राम स्वराज के, ठीक है। अब नरेगा की कुछ चीजें जो पॉजिटिव आउटकम्स है वो हाईलाइट की गई इसमें। पहली क्या है कि ये यूनिवर्सल स्कीम थी, टारगेटेड नहीं थी। अब सेंटर ने बोला हम डिसाइड करेंगे कौन से गांव में ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। दूसरा, इससे रूरल इनकम इंक्रीज हुई थी और इसमें जेंडर और कास्ट इनइक्वालिटीज थोड़ा कम हो रही थी और क्वालिटी एसेट्स क्रिएशन हो रहा था और कम्युनिटीज एम्पावर हो रही थी। ये सारी चीजें वीबीजी रामजी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक सर्वे हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का कहना है, उसकी फाइंडिंग ये है कि इनइक्वालिटीज जो हैं वो मनी लेंडर्स जो पैसा देते थे लोगों को और उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, दैट reduced by 21% due to मनरेगा, 21% reduction in exploitation,
इन एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। क्यों? क्योंकि सबके पास अपना पैसा आ रहा है नरेगा से, और रूरल एरियाज में जितना नरेगा से पैसा आ रहा दैट वाज सफिशिएंट। ठीक है, 45% of female मनरेगा वर्कर्स वर नॉट वर्किंग ऑन द फॉर्म्स ऑफ पीपल। 45% वुमेन अपने ही मनरेगा के काम से घर चला रही थी। ठीक है, और वुमेन पार्टिसिपेशन ओवरऑल मनरेगा में पिछले 5 साल में 58% था। 58% was women participation in मनरेगा। ओके, वुमेन पार्टिसिपेशन इन मनरेगा। ये कौन है? ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन मनरेगा। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो मनरेगा के फेवर में अभी भी फ्लैग किए गए हैं। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने 2009 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, 2009 में वर्ल्ड बैंक ने कहा मनरेगा इज अ बैरियर इन डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन 2024 में वर्ल्ड बैंक का ही कहना है इट इज अ स्टेलर एग्जांपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो दैट वाज अ वंडरफुल पॉइंट अबाउट मनरेगा। ठीक है, अब जो नए वाला है वो उसमें इश्यूज क्या क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्रोनिक फंडिंग है, या फिर 62 अंडर फंडिंग है, 60-40 रेशियो है, स्टेट्स का ओवरबर्डनिंग है, वो मैं कल बात कर चुका हूं। ठीक है, ये एक और आर्टिकल था मनरेगा के बारे में जिसको थोड़ा सा थॉरोली पढ़ा जाना चाहिए। 8 कोर सेक्टर्स ग्रो एट 1.8%। ठीक है, पहले तो समझो ये 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, मैं आपको आज भी बता देता हूं। ठीक है, 8 कोर सेक्टर्स। ठीक है, 8 कोर सेक्टर्स में मैंने आपको पहले बताया था 3 जो है वो सी लेटर से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। लेकिन अभी मैं रैंकिंग के हिसाब से लिखूंगा। ठीक है, नॉट बाय अल्फाबेटिकल। सबसे पहला हाईएस्ट वेटेज इसमें किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का पहला रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया दूसरा। ठीक है, तीसरा हो गया स्टील, कोल, क्रूड ऑयल। स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक है, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल। ओके, देन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, देन सीमेंट, एंड देन फर्टिलाइजर्स, देन फर्टिलाइजर्स। यूपीएससी इज वेरी fond of asking questions according to ranking according to weightage. Highest weightage is given to refinery product in the 8 core industries. How much weightage refinery products have? 28.4%, 28.04%. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेटेज इलेक्ट्रिसिटी 19.85%, 19.85%, 17.92% is steel, 17.92%. This is weightage in the 8 core industries. Okay, weightage 17.92%. Then 10.33% coal, 10.33% coal. Then 8.98%, approximately 9%, approximately 9%. Then 6.88%. Okay, 6.88%. Okay, 5.37%, and then 2.63%, 2.63%, 2.63%। समझ में आ गया आपको? तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज एक बड़े इंडेक्स का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जब आप 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज देखते हैं, इट इज अबाउट 41%। इट इज अबाउट हाउ मच? 41%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये प्रोडक्शन चेक करता है इंडस्ट्रीज की। इट इज पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस बाय विच ऑफिस? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिशेस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑन मंथली बेसिस। ये क्वेश्चन है सारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, अब डेटा जो है और बेस ईयर जो है वो कौन सा है? बेस ईयर आज भी 2011-12 है। ठीक है, बेस ईयर चेंज होएगा कुछ दिनों में, ये भी न्यूज आने वाली है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपके पास आने वाली हैं। ठीक है, अब एक इंडेक्स है जो सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्रीज का है, इंडेक्स फॉर 8 कोर इंडस्ट्रीज, आईसीआई, इंडेक्स फॉर 8 कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स फॉर कोर इंडस्ट्रीज। अगर सिर्फ इसी का सवाल पूछा जाए तो ये इसको कौन पब्लिश करता है? इट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये तो हो गया आपका बेसिक।
आर्टिकल क्या कहता है कि नवंबर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म किया है, ठीक है। वो है सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर एंड कोल। इनका पॉजिटिव ग्रोथ रहा है नवंबर में, ठीक है। क्रूड ऑयल का भी पॉजिटिव रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का क्या है, उसमें रिकॉर्ड किया गया है कॉन्ट्रैक्शन। क्रूड ऑयल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल गैस आउटपुट भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कम्युलेटिवली नेचुरल गैस प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है। लेकिन पेट्रोलियम का जो है, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, ये मैंने यहां पे लिखा है, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेटेज कितना है, 28.4%, ठीक है। अब इसमें क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है, इसमें ओवरऑल डिक्लाइन हुआ 0.9% का। हालांकि मंथली डिक्लाइन कई सारी चीजें हैं, लेकिन रिफाइनरी आउटपुट ने कम्युलेटिवली अगर बात करें तो पॉजिटिव ट्रेंड शो किया है। फर्टिलाइजर सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किसने रजिस्टर किया है, स्टील का भी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और 9.7% जो है वो स्टील इंडेक्स, कम्युलेटिव स्टील रिकॉर्ड, कम्युलेटिवली स्टील पूरे साल बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। और सीमेंट जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट है कोर इंडस्ट्रीज में, जिसमें पूरा साल में 14.5% का ग्रोथ है, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी इंडस्ट्रीज सही परफॉर्म कर रही है। कोर इंडस्ट्रीज इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे सेक्टर में, रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब जगह पे लिंक्ड है, और इनकी वेटेज काफी ज्यादा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू सीरीज ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन एंड जीडीपी डेटा फ्रॉम February 2026। इसका मतलब February 2026 तक हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन ऑफ बेस ईयर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बेस ईयर क्या होता है। ये एक ईयर होता है जो पास्ट का ईयर होता है, जिसके रेफरेंस में हम ग्रोथ या बाकी चीजों को चेक करते हैं, रियल ग्रोथ, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन हम नहीं कंसिडर करते। और बेस ईयर जो है वो लास्ट टाइम रिवाइज कब हुआ था, 2015 में। कौन सा था, 2011-12 प्रीवियस बेस ईयर। अब प्रोबेबल ये हो सकता है 2022-23 विल बी द न्यू बेस ईयर। और इसके लिए कौन सी कमेटी बिठाई है पार्लियामेंट ने, दैट इज BN गोल्डर कमेटी, जो इस क्वेश्चन में अभी भी डिस्कस कर रही है कि बेस ईयर कौन सा होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जो डेटा है उसको ग्रेड 3 में रखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस की ज़रूरत है, मैथडोलॉजिकल एरर्स है। वो प्रीवियस वीडियोस जो है लगातार देखोगे तभी करंट अफेयर्स समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उसमें सबसे पहले हमको बेस ईयर जो है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सब चीजों पे हमें जो है नया डेटा मिलेगा। नया डेटा जब आता है, इकोनॉमिक्स में बड़ी सर्कस होती है, और काफी वो समझो इकोनॉमिक्स का एक मेला टाइप लगता है, कम से कम 6 महीने के लिए। उसमें नए नए डेटाज, नई नई चीजें, नई नई मेथोडोलॉजीज, न्यू लर्निंग्स, ये बड़ा आगे इकोनॉमिक्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है। अगले 6 महीने इकोनॉमिक्स के लिए एक तो अपडेशन का टाइम है, और ये वंडरफुल टाइम है इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स जिनको नहीं पता, कभी मौका मिला तो हम डिस्कस करेंगे। और एडवांस इकोनॉमिक्स में तो ये करंट अफेयर्स वगैरह जो है, ये तो मैं साथ साथ में डिस्कशन करता ही जाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद आपका आज के हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। जब तक हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे कल कुछ और करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।